Good morning, my dear students. I hope you all are enjoying the class, English class, I mean, on the digital platform. So, once again, I welcome you in today's class, part 4 of determiners. So, I had been teaching you determiners. Already, I have finished 3 parts of determiners, I mean, the explanation portion of part 1, part 2, part 3 I have finished. So, today I will be taking part 4. Okay. So, listen to me attentively, watch this board, and if any queries are there, I will let you know. I will ask you about the queries, okay, after the class finishes. So, these are determiners, and as I have already told you before, determiners go before a noun. Determiners go before a noun, means they are placed before a noun. Okay, determiners का placement कहाँ होता है? Noun से पहले होता है या noun phrase से पहले होता है? उसमें noun रहना चाहिए जरूर. Okay, they tell you more about the subject. किसके बारे में बताते हैं? Subject के बारे में. Okay, the person or thing we are speaking about, that is called the subject. Okay, see, once again I am just revising here. Those books, these pencils, this pen, these are plural, and this pen, this is singular, that pen, the coat, all these are determiners. Those, these, this, that, the, a is also determiner over here, a tree, and is also determiner. Okay. So, we will move on to the next slide. So, I was talking about intensifiers. Do you remember? In the last class, I have discussed about intensifiers, and I have come today with lot of examples over here. Okay, and also what are the characteristics of determiners? Which type of determiners? Intensifiers. Intensifiers comes under predeterminer. So, all these I have already explained to you. These can express disappointment, surprise and other emotions. Okay, you remember, it refers to disappointment, any sort of disappointment feeling which comes from our heart, our mind, surprise and happiness. Okay, words rather and quite don't have any stable positive or negative characteristic, because the emotion depends on the adjective or determiner that stands before a noun phrase. This thing is also explained in the last session. Okay, these are the examples. You have gone through these examples. What a gorgeous horse, what a beautiful morning. So, what, here also what, here what, these all are intensifiers. Okay, quite, rather, these are intensifiers. You remember very well. Okay, intensifiers means giving a strength. We are giving a strength to the noun. Okay, don't forget it. Giving a strength or power to the noun, so that we can know more about the noun. We can get a clear picture of the noun. Okay, thank you. Now, I will move on to the next. You see here, now you come to others category. So, we have learned about the type of predeterminers. We have learned, first one is multipliers, which I have explained to you. Second one is fractions,
I have given an example of a braid. Okay. Then third one is intensifiers. Clear? And this is the fourth one, others. This other type of predeterminers, they don't come into the category of multipliers, intensifiers, fractions. तो ये others जो है ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रीडिटर्मिनर्स है, जो कि बाकी के तीनों कैटेगरी जो समझाया हूं उसमें ये नहीं आते, उससे बिल्कुल अलग है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया अदर्स. ओके. फ्यू डिटर्मिनर्स फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ अदर्स. बहुत कम डिटर्मिनर्स है, फ्यू बहुत कम डिटर्मिनर्स है जो कि अदर कैटेगरी में आता है, अदर्स का कैटेगरी में आता है. ओके. दीज आर यूज्ड टू रिफर टू एन एंटायर अमाउंट. और ये क्या बताता है? पूरे अमाउंट के बारे में दर्शाता है. एंटायर अमाउंट, होल अमाउंट. ये होल अमाउंट के बारे में दर्शाता है. ओके. हम लोग देखे हैं फ्रैक्शंस में 3/4, 1/2 ये सब देखे हैं. मल्टीप्लायर्स में देखे होगे डबल, ट्रिपल, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, वो सब प्री डिटर्मिनर्स है. ठीक है. इंटेंसिफायर्स में भी देखे. दिस इज सी सच अ ब्यूटीफुल वुमेन, सच हो गया इंटेंसिफायर. व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस बोलते हैं, जो व्हाट लग गया वो हो गया इंटेंसिफायर. ओके. तो हमने देखा है. लेकिन ये जो है ये पूरे होल चीज के बारे में बताता है. ठीक है. वर्ड्स लाइक ऑल एंड बोथ आर अदर डिटर्मिनर्स. कौन कौन से वर्ड्स है? ऑल है और बोथ जो है ये अदर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आता है. ओके. दिस कम्स इन अदर कैटेगरी, अदर्स कैटेगरी. विच वन? ऑल एंड बोथ. Okay, now come to the example. Many examples are there. He invited both the families to the dinner. He invited both the families to the dinner. उसने दोनों परिवार को डिनर पर बुलाया. एक परिवार में 7, 8, 10 लोग हो सकते हैं, तो दोनों परिवार का अगर 15-20 लोग हो गए होंगे या 10-15 लोग हो गए होंगे. बोथ द फैमिलीज. घर पे जब भोज होता है तो पूरे परिवार को बुलाया जाता है ना, पर पटीदारी में. तो वैसे ही कोई बात होगी. ही इन्वाइटेड बोथ द फैमिलीज, या कुछ और बात होगी. ठीक है. कोई ओकेजन होगा. तो फैमिलीज क्या है? फैमिलीज इज अ नाउन ओवर हियर. ओके. द इज द डिटर्मिनर. द क्या है? डिटर्मिनर है. क्योंकि फैमिलीज से पहले आता है. किसकी बात कर रहे हैं? द फैमिलीज. ओके. अब बोथ मीन्स दोनों परिवार. तो बोथ क्या हो गया? ये प्री डिटर्मिनर हो गया. कौन सा कैटेगरी का? अदर्स कैटेगरी का. सो स्लोली तुम लोग को सब क्लियर होते जा रहा है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट. ओके. द मोर यू अंडरस्टैंड द मोर यू रिमेंबर. ओके. यू ब्रोक बोथ हिज हैंड्स इन द एक्सीडेंट. किसी ने किसी का दोनों हाथ तोड़ दिया, तो बोल रहा है यू ब्रोक बोथ हिज हैंड्स इन द एक्सीडेंट. तो हैंड्स क्या है? नाउन है. हिज क्या हुआ? डिटर्मिनर हुआ. बोथ क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर हुआ अदर कैटेगरी का. क्लियर? अदर्स कैटेगरी का हो गया बोथ. नाउ यू सी, he saw all those people. उसने सभी लोगों को देखा. उन सभी लोगों को देखा. those का मतलब उन. उसने उन सभी लोगों को देखा. उन बोलने से those. तो people क्या हो गया? noun. those क्या हो गया? determiners. all क्या हो गया? predeterminers of others category. Okay, very good. Now come to all, half and both. अब all, half और both ये तीनों कैटेगरी ऑफ डिटर्मिनर्स है. इस कैटेगरी में आता है. तीन प्रकार का डिटर्मिनर्स है, माने ये 3 वर्ड्स है ये अदर कैटेगरी का. ओके.
With singular countable nouns, we can use half and all, but not both. Singular countable nouns you know, which you can count. तो जो काउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, उसके साथ हम हाफ और ऑल को ही लगा सकते हैं, बोथ को नहीं लगा सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में. दिस इज ए रूल. ओके. और सेंस ही नहीं कहेगा लगाने के लिए बोथ को सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में. सेंस भी तो बनना चाहिए, सेंस भी वैसा नहीं कहेगा. फॉर एग्जाम्पल यू सी सम एग्जाम्पल्स आर गिवन. half a bun is better than none. half a bun. ओके. तो हमने क्या चर्चा किया था? हाफ, ऑल, बोथ. तो यहां बन क्या है? नाउन. बन मने ब्रेड को बोलते हैं, गोल वाला जो ब्रेड होता है ना, जो मीठा पावरोटी के रूप में तुम लोग खाते हो, उसी को बन बोलते हैं. हाफ ए बन इज बेटर देन नन, मतलब एक आधी बन मिल जाए तो कुछ नहीं मिलने से अच्छा है. ठीक है. सारा दिन भोजन नहीं मिला किसी को, और भटकते भटकते शाम को उसको आधी रोटी मिल गई, उसी से वो संतुष्ट हो गया. ठीक है. ए इज अ डिटर्मिनर ओवर हियर, हाफ इज अ प्री डिटर्मिनर ऑफ अदर्स कैटेगरी. ओके. और ये सिंगुलर है. एक बन का आधा सिंगुलर ही हुआ ना, एक बन की बात हो रही है, उसकी आधी सिंगुलर ही हुई. नाउ यू सी बोथ ए बन आर बेटर देन नन. हो सकता है क्या? बोथ ए बॉयज होता है, बोथ ए बॉयज आर डांसिंग होता है क्या? नहीं होता है ना. बोथ बॉयज आर डांसिंग होगा. ओके. तो बोथ बंस होता, इधर बोथ बंस आर बेटर देन नन, ये हो सकता था. तो बन क्या है? अगेन इट्स नाउन. ए क्या है? डिटर्मिनर है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है. बोथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं लग सकता है, इधर मैं बता दिया हूं. ओके. बोथ क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं लग सकता है. ओके. दिस इज ए रूल. नाउ यू सी नेक्स्ट वन. ऑल माई ऑफिस हैज बीन डेकोरेटेड. ऑल माई ऑफिस, मेरे पूरे ऑफिस को सजा दिया गया है. दिवाली का समय आ गया है, तो मेरे पूरे ऑफिस को सजा दिया गया है. तो ऑफिस इज अ नाउन ओवर हियर, माई इज अ डिटर्मिनर, ऑल इज अ प्री डिटर्मिनर ऑफ अदर्स कैटेगरी. ऑल हम लोग यूज कर सकते हैं, यहां पर मैं बताया हूं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ. ओके. एक ही ऑफिस है, ऑफिस एक ही है, 10 ऑफिस नहीं है. मेरे एक ही ऑफिस है ना, तो एक ही ऑफिस है, तो इसीलिए कहा गया है माई ऑफिस, पॉजिटिव. ओके. यहां पॉजिटिव है माई, तो बता रहा हक मेरा, मेरा ऑफिस में मेरा ही अधिकार है ना बैठने का, कोई और नहीं बैठ सकता है. ओके. तो ऑल इज अ प्री डिटर्मिनर ऑफ अदर्स कैटेगरी. नाउ he waited all that day. वह सारा दिन, वो उस दिन सारे दिन, सारा समय इंतजार किया उस दिन. that day. so that day, that और डे क्या है? डे इज अ नाउन, that is a determiner, all is a predeterminer of others category. Is it clear? Now you see, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ क्या क्या यूज होता है मालूम हो गया. हाफ यूज होता है, ऑल यूज होता है ना. बोथ नहीं यूज होता है. ठीक है. बोथ ए गर्ल्स नहीं कर सकते हैं, बोथ ए बुक्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है. बोथ ए पेन्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स वी कैन यूज ऑल, हाफ एंड बोथ प्रीडिटर्मिनर्स. जहां प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की बात है वहां हम ऑल का यूज कर सकते हैं, हाफ का यूज कर सकते हैं और बोथ, तीनों का यूज कर सकते हैं.
ठीक है, हमने देखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में सिर्फ ऑल एंड हाफ का यूज हुआ था, बोथ का यूज नहीं हुआ था. डू यू रिमेंबर व्हाट आई हैव टॉट यू जस्ट राइट नाउ? बट इन द केस ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, all these three, all, half and both are used. Okay, very good. Half of the fruits, now examples देखो, half of the fruits are rotten. half of the fruits, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रूट्स की बात कर रहे हैं. फ्रूट्स क्या हो गया? नाउन हो गया. द क्या हो गया? डिटर्मिनस हो गया. और हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रूट्स की. कितने फ्रूट्स की? हाफ ऑफ द फ्रूट्स. ढेर सारे फ्रूट्स होंगे, 10, 20, 50 होंगे. उसके आधा 50 के आधा 25 हो जाएगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा. तो आधी की बात कर रहे हैं. तो आधी क्या हो गया? इट इज अ प्री डिटर्मिनर्स ऑफ अदर्स कैटेगरी एंड इट इज बेसिकली यूज्ड इन बोथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन as well as plural countable noun. Okay, half can be used. Now you see, both the fruits are rotten. दोनों जो फल है वो सड़ गए हैं. ठीक है, तो यहां किसकी बात कर रहे हैं? फ्रूट्स की. फ्रूट्स क्या हो गया? नाउन. द क्या हो गया? डिटर्मिनर. बोथ क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर. मतलब दोनों फल एंड प्री डिटर्मिनर ऑफ अदर्स कैटेगरी. तो सिर्फ बोथ का यूज कहां होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन से. एक से ज्यादा की जब हम बात करते हैं, हाँ, बोथ, दोनों. ठीक है, मतलब दो की जब बात करें तो बोथ की जहां बात करी, जहां ये शब्द आ जाए बोथ, वहां ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में उपयोग होता है. नाउ यू सी, both the students came. Students is a noun over here, the is a determiner over here. Again both is a predeterminer of others category. Okay, now next one, all the students came. All the students came. We are talking about students. स्टूडेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, उससे पहले आ गया द इज अ डिटर्मिनर, देन इट इज प्रीसेडेड बाय ऑल. ऑल इज अ प्री डिटर्मिनर ऑफ अदर्स कैटेगरी. ऑल द स्टूडेंट्स केम. सारे स्टूडेंट्स आए. ओके, सो ऑल हियर is used in plural countable nouns. It can be used in singular countable nouns also. Okay, now you see, half of the students came. half, जितने स्टूडेंट्स थे उसके हाफ आए. तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की. तो ये क्या हो गया? नाउन. द हो गया डिटर्मिनर. हाफ हो गया प्री डिटर्मिनर. Clear? I hope it's getting clear. Okay, with all the things. Now come to the last part of this session, articles. You are very much aware of this fact, articles. You have been studying from the very beginning about articles. आर्टिकल्स के बारे में आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं ना. क्लास 2-3 में भी पढ़ाई हुई होगी आर्टिकल्स के बारे में. ए एंड द के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे. ओके, तो आर्टिकल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. यू सी, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट. यहाँ कितने सारे आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं? द, ए, द, एंड, ये सब दिखाई दे रहा है. ये पिक्चर दिया गया आर्टिकल्स के ऊपर. ओके, तो आर्टिकल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं? दो प्रकार के, इंडेफिनेट और डेफिनेट. इंडेफिनेट किसको कहते हैं?
जो खास नहीं होता है, विच इज नॉट स्पेसिफिक. सो indefinite articles are not specific. They are not specifically used with a noun. Okay. But definite articles are specific. They are used in particular case. खास रूप से उसका उपयोग किया जाता है. किसका? Definite का. Okay. So here A and an are indefinite articles. A और an क्या है? Indefinite articles है. ठीक है. Indefinite articles किसको बोलते हैं? A and को. क्यों? क्योंकि ये खास नहीं है. These are not specific. These are used before a general word. Means it is used in a general sense. ये सामान्य रूप से indefinite articles का यूज होता है a और an का. ठीक है. A is used before a consonant sound and an is used before a vowel sound. You know very well. Okay. The noun should begin with a vowel sound, then it is used, and an is used before that, and when the noun begins with a consonant sound, a is used. Okay. Now you see, the is a definite article. The जो है वो definite article है, because it tells about a specific noun, a specific person, place or thing. Okay. A specific person, place और thing और animal के बारे में बात करता है या feeling के बारे में बात करे तो वहां the का उपयोग होता है. Okay. The indefinite articles are used when we talk about people in a general or indefinite way. अब देखो indefinite articles का कब यूज होता है? जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं सामान्य रूप, सामान्य तरीके से बात करते हैं किसी लोगों के बारे में, कोई चीज के बारे में, कोई पर्सन के बारे में, कोई प्लेस के बारे में, जनरल तरीके से, सामान्य तरीके से जब बात करते हैं तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स का उपयोग होता है. ठीक है. तीन डेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन है? ए है और एन है. और डेफिनेट आर्टिकल कौन है? द डेफिनेट आर्टिकल है. अब इसका यूसेज कैसे होगा आगे, ये मैं विथ एग्जांपल्स आई विल जस्ट कंप्लीट इन द नेक्स्ट सेशन. Okay. So, my dear students, you have gone through determiners. Determiners, I have taught you how determiners are used. Then intensifiers का examples मैं बताया. Then others category of determiners you saw. These are actually the category of predeterminers, others category. Okay. Determiners के अंडर में predeterminers आता है और predeterminers के अंडर में ही others आता है. Okay. So this is the fourth category of predeterminers. Okay. Then this one you came to know that with plural countable nouns we can use all, half and both predeterminers. Okay. So all these things you have learned today. I hope you will keep this in your memory, and if you have any doubt you can ask me. Okay. So that's all for today's session, today's class, my dear students. Thank you.